Good evening, everyone, and welcome to today's session. I'm Ruchita, your host. Today, we are going to discuss something very fundamental, that is, protein requirement. We're going to bust some myths versus facts about protein and understand what is the right kind of protein that we should be consuming. Also, when and how much should one be consuming? To discuss this in much more detail, we have two very esteemed speakers with us tonight. To begin this session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on this group as a flag bearer on this journey with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him on this virtual stage and listen from him. Over to you, sir. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Friday session. I just hope that you had an early dinner and did some exercise, because the worst thing that you can do to your body is to have a late night meal and then go to sleep. Now, today we are going to be discussing about protein. Now, protein is the building block of life, and it is one of the most important macronutrient. And yet, there is so much of misinformation on this subject that it really confuses an ordinary person who is not into nutrition. And hence, today you're going to be listening from somebody who's done a lot of study. Okay, he's figured out, what are the right things. Just a couple of days ago, I got a message from somebody saying that, oh, you can, why do you need to buy a protein supplement? You can make protein in the house by just taking some, flax seeds and ham and pumpkin seeds. And I said, okay, yes, that is great. But do you really know that how much of flax seeds you'll have to eat? If you eat 100 grams of flax seeds, you'll get 15 grams of protein. You need 1 gram per kilo of body weight. So let's assume if you were even 60 kilos in weight, okay, you need 60 grams of protein. So if you want to get that protein requirement from your flax seeds, you'll have to eat 400 grams of flax seeds. Do you really think that's possible? And hence, I really urge you to, pay a close attention to this major macronutrient. Ensure that you're getting it in your morning nutrition. Think when you put food on your plate that does my morning nutrition have at least 50% of my protein requirement? And if not, then take some steps to correct it. It's very easy to add carbs to your diet. I'm not saying carbs are not important. Okay. I do not advocate those theories, no carb, no this, no that. No, balance is critical. You always need balance to achieve, to get the right amount of nutrition in your body. How much of carbohydrate and protein and fat balance, okay, is something that a person has to figure out depending upon the kind of activity that person is involved in. So as I mentioned, that there are lots of, facts and fiction about protein, lots of myths. And today you're going to be listening from somebody who's done a lot of study, a lot of research on this subject, and will give you the facts in a fashion that will really help you. So over to you, Raj. Thank you very much, Farooq, and good evening, everybody. As introduced, I'm Raj, and I'm connecting to you all from Gurgaon. Very, very interesting subject today we are going to discuss, and that's protein. For the first time when I was exposed to this subject, it was the year 1996. For my internship, I had gone to a plant on the outskirts of Mumbai, somewhere near Sanpada, and now it is no more the outskirts. It's very much a part of Mumbai now. But then it was treated like a outskirts, and that's in that manufacturing plant I saw protein, how it was made for the first time. What has been told about protein then was this is specially required for the patients. So for the recovery, they need protein. And for the like ये एक image मेरे दिमाग में बन गया था कि you need protein only if you are sick or not well.
how this protein was made, and this was, in fact, to an extent, it is still one of the leading brand in India today. It is still one of the leading brand. And how this protein was made was, when Godrej company would extract oil from groundnut, the residue would come to this plant, and they were making protein from this plant. And this was like all the doctors would be recommending this protein. एंड जब मैं ये प्रोग्राम से जुड़ा, जब आई रियलाइज हाउ डू यू रीड द लेबल्स, हाउ मच कंटेंट ऑफ प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, वाई प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का क्या रोल है, तब मुझे समझ में आया कि बॉस, ओनली नोइंग प्रोटीन इज नॉट इनफ, यू नो। अदरवाइज हमने बहुत एडवर्टाइजमेंट्स में देखा है, इवन है ना, पार्ले जी बिस्किट्स में वो बोलते हैं प्रोटीन युक्त बिस्किट, और मुझे लगता था शायद यही है प्रोटीन का जो फुल डेफिनेशन है। So today you are going to see a complete picture of what this subject is all about. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, इसके मिथ्स और फैक्ट्स क्या है, आज आप ये सारी चीज सुनोगे। Why this is important today? Like, I'll give you another example. Recently I met a colleague of mine. I met this colleague almost after 10, 12 years. And first, he is like 4 years younger to me. And the first reaction जो उसका था, मेरा हाथ नहीं उठ रहे, मेरे हाथ ऐसे बैक पे नहीं जा रहा है, and I'm facing a lot of challenge. एंड सिर्फ मैंने इतना पूछा, सो हाउ आर यू मैनेजिंग योर प्रोटीन, सो यू नो, कई बार ऐसा, एंड हिज रिएक्शन वाज लाइक वेरी वेरी ऐसे ही नॉर्मल, मतलब, सो कई बार क्या होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमें लगता है कि हमें प्रोटीन के बारे में सारा कुछ पता है, बट डू वी रियली नो, एंड आर वी रियली इंश्योरिंग द एडिक्वेट सेट ऑफ प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड इन अ फूड। सो दैट इज व्हाट कैन कीप अस हेल्थी। सो आइए आज देखते हैं प्रोटीन के बारे में, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मच बेटर, and how we can help you to have a healthy and a great life. Now, we are made of protein. Is there no protein? There is no you. So, जो हमारा body है, जो हमारा muscles है, जो हमारे cells हैं, protein plays a very, very important role in it. And अगर वही नहीं रहेगा तो शायद हम ही नहीं रहेंगे. Now, some facts. 8 out of 10 Indians are deficient in protein. 9 out of 10 Indians are unaware of the daily requirement of protein. As Farooq just said, that 1 gram per kg body weight and flaxseed 100 gram will give you only 15 grams of protein. Now, ये जो balance है, कई बार deliberately हम इसको एड्रेस नहीं करना चाहते हैं. वी लव टू बी इग्नोरेंट अबाउट दिस होल फैक्ट, यू नो. इग्नोरेंट का मतलब है, नहीं नहीं 15 ग्राम से भी हो जाएगा ना, कुछ तो होता ही होगा ना. सो अगर हम, एंड आई एम श्योर नोबडी टेक्स 100 ग्राम्स ऑफ फ्लेक्सीड एवरी डे. सो हम नॉर्मली 1 टेबल स्पून विच इज अराउंड 10 ग्राम या 20 ग्राम खाते हैं. सो इमेजिन करिए 1-1.5 ग्राम प्रोटीन हमारे बॉडी में जा रहा है, और हम ना डेलिबरेटली उसको देखना भी नहीं चाहते. इट्स लाइक क्लोजिंग द आई, यू नो, आप आंख बंद करके उस सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं. सो 9 आउट ऑफ 10 इंडियंस आर अनअवेयर ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी. ये कुछ स्टैट्स है. 73% नाउ स्टेट ऑफ अर्बन वेल ऑफ इंडिया के ये स्टैट्स हैं, दैट 73% ऑफ द डाइट्स दैट वी आर ईटिंग इज प्रोटीन डेफिशिएट. 93% अनअवेयर ऑफ द आइडियल प्रोटीन रिक्वायरमेंट. नाउ आइडियल इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. बेस्ट सोर्स, सिर्फ हमको इतना पता होता है कि अंडा खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो, हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. जो लोग थोड़ा और ज़्यादा सीरियस हैं, एवरी डाइट दे टेक चिकन. नाउ यू आर नॉट अवेयर कि आप चिकन तो खा लोगे, लेकिन उसका आपके गट हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. 84% of the vegetarian diets are deficient in protein. Last batch Veda so beautifully spoke about vegetarian source का सबसे बड़ा प्रोटीन absorption का ड्रॉबैक क्या है. 65% of the non-veg diets are lacking in protein. 97% of pregnant women don't know protein requirement effectively. Now, why do you think this is it? You know, हम मेडिकल साइंस में तब जाते हैं जब डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है. सो कई बार जरूरी नहीं है हम जिसकी सुन रहे हैं दे आर फुली अवेयर अबाउट दिस होल सब्जेक्ट, यू नो, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. आपका हेल्थ है, आपकी बॉडी है, आपकी फैमिली है, आपको इसके बारे में स्टडी करने की जरूरत है. डोंट डिपेंड ऑन योर फिटनेस ट्रेनर और जिम ट्रेनर और योर डॉक्टर दैट दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स टू यू, right? 53% rate in protein as the most essential for its health benefits, but alarmingly, only 1/3 believe lack of protein can cause weakness and fatigue. So, although हमें पता है, लेकिन हम इसके consequence नहीं जानते या हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं. Now, ये कुछ इंडिया के statistics है, कितना ज़्यादा हम प्रोटीन डेफिशिएंट है, राइट.
protein deficiency in 70% of the parents. Singles have seen to have better protein intake than families. Approximately 62% of pregnant women, lacting mothers face protein deficiency. Now अब imagine करके देखिए, अगर एक pregnant lady ही deficient है protein में, imagine करिए जो baby आएगा उसकी health क्या होगी, उसके health stats क्या होंगे. And this is one of the core reason that why you see so much children falling sick. And it is not a good sign कि छोटे बच्चे थोड़ा सा भी सीजन चेंज होता है या कुछ भी होता है, दे फॉल सिक. इट इज नॉट अ गुड साइन और अ हेल्दी साइन. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर आप इसके बारे में स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि कैसे दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है. वीकनिंग ऑफ मसल्स, ये एक नया साइलेंट किलर है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है विद इन इंडिया. आई एम टॉकिंग अबाउट. सो यू नो, जस्ट प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग हो या कुछ फिटनेस ट्रेनिंग में हो तो ही इंपॉर्टेंट है. मसल डिजनरेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइलेंट किलर इन इंडिया जो रैपिडली ग्लो कर रहा है. आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी स्टडी करके देखिए क्यों हो रही है सारी चीजें. Only 52% of mothers of the 8 to 15 years old associate with protein and health. Working women and housewives found to be 70 to 80% protein deficient. Now imagine करिए अगर ये अर्बन इंडिया पॉपुलेशन के स्टेटस है या उनके ये फैक्ट्स है, सो इमेजिन करिए वेयर डू वी स्टैंड. एंड इसका कॉन्सिक्वेंस आने वाले दिनों में क्या होने वाला है. मिथ्स अबाउट प्रोटीन सोर्सेज. प्रोटीन इजीली अवेलेबल इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं होता है उनमें, वेजिटेरियन में. एंड वेजिटेबल फूड में बॉडी को प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंपेयर टू नॉन वेज सोर्स में. बट अगेन नॉन वेज हैज़ गॉट इट्स ओन कॉन्सिक्वेंस. सो यू हैव मतलब यू हैव टू लर्न दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. 70% प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टिंग मदर्स wrongly believe this. Leafy vegetables are good source of protein. 73 urban populations think that it is true. And some things that protein are bad for health. 20% of those surveyed believe a protein rich diet is unhealthy. बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि प्रोटीन सिर्फ बच्चों को ज़रूरत होता है या जो पेशेंट्स हैं उनको ज़रूरत होता है. जब आप ग्रो कर जाते हैं लाइफ में, मतलब एट अ फर्दर एज, you don't need protein. So there is a lot of myth around this whole subject, you know. Protein is the building block of your life, right? It comes from the Greek word proteos, meaning primary or the first plate, which highlights its importance as a nutrient. This is the most important nutrient in a human body. Proteins are made out of 20 different amino acids. Protein is vital nutrient in our body. Constituent basically it contributes to almost 15 to 60% of our body mass, right? High prevalence of protein deficiency among 73 urban rich Indians. Now देखिए, जो अर्बन भी है, रिच भी है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसके वजह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी इतनी हाई है. एंड मोर देन 90% आर अनअवेयर ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन. नो, ये उसके अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और ये नॉन एसेंशियल है. जब इसको बनाया गया था ये नॉन एसेंशियल था बिकॉज बॉडी में ये मिल जाता था एंड ये बॉडी सिंथेसाइज कर लेता था. बट टुडे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द क्वालिटी इन द फूड, ये नॉन एसेंशियल भी अब एसेंशियल बन गया है. तो ये वो अमीनो एसिड्स है जिससे एक प्रोटीन बनता है. नाउ वेन एवर वी थिंक दैट वी कैन मेक प्रोटीन इन आवर होम, what you are not aware is शायद जो कॉम्बिनेशन आप प्रिपेयर करोगे उसमें ये सारे अमीनो एसिड्स आएंगे. और अगर ये एंड ईच ऑफ दिस अमीनो एसिड इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दे हैव अ वेरी वेरी वाइटल रोल टू प्ले इन आवर बॉडी. Tonight I'll not get into the detail of what is the role of each of this amino acid, but जिसने भी आपको बुलाया है उसे जरूर चेक करिएगा ये अमीनो एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका हेल्थ बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है, राइट? सो जरूरी नहीं है कि अगर हम घर में जो प्रोटीन बना रहे हैं या आप जो XYZ ब्रांड का जो प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर ये सारे अमीनो एसिड होंगे. नाउ दिस इज जो अमीनो एसिड है उसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में. इट हेल्प्स टू बिल्ड मसल. इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. यू नो, अभी मैं वो आपको बता रहा था कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड इफ दे आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी और उसकी इम्यूनिटी पे. ये देखिए, प्रोटीन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. इट सस्टेन्स अ नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर आपका प्रोटीन कंटेंट सही है बॉडी में सो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करेगा. Constipation and digestive related issue is another big subject and a big challenge in today's health system पे. It helps in transporting the essential molecules
around the body. It supports the regulation or expression of DNA and RNA. Now, डीएनए में कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, कुछ लोग को आप देखोगे बहुत जल्दी वो बूढ़े दिखने लगते हैं, और कुछ लोग को आप देखोगे वो नहीं दिखाई देता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? द मेन कोर डिफरेंस बिटवीन देम इज योर डीएनए लेवल, एंड कहीं ना कहीं प्रोटीन इसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड. इसके डिटेल्स हम अभी आगे देखेंगे. इट इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, मेक्स हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स. सो जो ब्रेन में जो केमिकल लोचा होता है, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है. इट प्रोवाइड्स एन एनर्जी एंड सोर्स. बहुत सारे यंग पेरेंट्स आज के तारीख में ऑटिज्म एंड एडीएचडी से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है. Protein and omega-3 fatty acid plays a very important role in maintaining that and help and having a great health. It maintains healthy skin, hair and nails. आप किसी के भी घर पे जाइए, आप उसके बालों की क्वालिटी को देख के आप जज कर सकते हैं कि इस घर में इनके डाइट में प्रोटीन कंटेंट कैसा है. यू कैन वेरी क्लियरली सी एंड मेक आउट फ्रॉम दैट. तो स्किन की क्वालिटी देख के, नेल्स की क्वालिटी देख के, यू कैन वेरी इजीली यू कैन मेक आउट that what is the level of protein awareness in that house and family. Uh, the amount of protein requirement depends upon, there are the two factors जिसके ऊपर ये प्रोटीन डिपेंड करता है. आपके फिजियोलॉजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है, विच मीन्स व्हाट्स योर सेक्स, एज, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ स्टेटस. एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी प्रोटीन क्वालिटी पे डिपेंड करता है. बहुत सारे लोग, हम लोग को ऐसा लगता है कि हम जो प्रोटीन खा रहे हैं इट इज इनफ एंड वी आर हैविंग द राइट क्वांटिटी. बट ये जो अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन, एज आई जस्ट सेड, it plays a very important role in defining the quality of the protein that you're having. And second and the most important is the PDCA score. Almost nil brand, except some, almost nil brand ये mention करेगी अपने लेबल पे that what is the PDCA score of that protein. Now what is PDCA score? PDCA score means प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर. इसका मतलब ये है, आप जो प्रोटीन खा रहे हैं वो आपकी बॉडी कितनी डाइजेस्ट कर रही है, वो डाइजेस्ट कर भी रही है कि नहीं डाइजेस्ट कर रही है. एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है प्रोटीन का, जो बचपन से हम सब, शायद मैं तो डेफिनेटली, बिकॉज माय डैड वाज फ्रॉम डिफेंस, और ये एक स्टैंडर्ड हमारे घर में हमेशा रहता था. ये मैं उस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत फेमस चॉकलेट भी बनाती है. और जब आप उसका लेबल स्टडी करेंगे तो व्हाट यू विल फिगर आउट दैट ओनली 100 ग्राम हैज ओनली 7 ग्राम्स प्रोटीन इन इट, एंड दैट टू नॉट विद द राइट अमाइनो एसिड कंपोजिशन इन इट. सो इमेजिन करिए, अगर 100 ग्राम में केवल 7 ग्राम प्रोटीन है, सो 10 ग्राम का जो एक स्पून होता है उसमें हार्डली यू आर गेटिंग 0.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन. एंड पेरेंट्स फील दैट वो जो बॉटल है घर में या जो डब्बा है घर में, वो अपने बच्चे को एडिक्वेट प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करें. सो समटाइम्स दिस सेशंस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू रीड अ लेबल और राइट सेट ऑफ कंपोजिशन क्या होना चाहिए अगर किसी चीज में है. सो this requirement depends on these two factors. आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. नाउ व्हाई डू वी नीड प्रोटीन रिक्वायरमेंट, लाइक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट? एज फरूक सेड दैट वी नीड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर द एवरेज एंड सेडेंटरी इंडिविजुअल. सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, राइट? 1.1. सो एवरेज अगर आप इसका देखेंगे तो मेनली वी नीड समथिंग अराउंड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और ये डेढ़ पौने 2 तक भी जाता है, डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या, आप क्या क्या करते हैं. बट ऑन एन एवरेज ये देखा गया है दैट यू नीड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, राइट? नाउ मॉर्निंग न्यूट्रिशन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और मॉर्निंग न्यूट्रिशन में ये क्या रोल प्ले करता है? बिफोर दिस प्रोग्राम I was serious about eating healthy food, a healthy breakfast. But इस प्रोग्राम में आने के बाद मुझे समझ में आया था that there is a significant difference being healthy and eating nutritious food. Now रात को जब हम सोते हैं, हमारे बॉडी में सेलुलर रिपेयर होता है, बहुत सारी चीज़ें जो जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है हमारे बॉडी में, बॉडी जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसको रिपेयर करती है. एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गेट अप विद अ नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस. So your protein balance in the body is negative. Protein is one component in the body जो body carry forward नहीं करता. ये daily का daily consume हो जाता है, body इसको next day पे carry forward नहीं करता है. So every day your protein का tank needs to be full, right? बहुत सारे घरों में जैसे हम पानी के टैंक को फुल करते हैं, उसी प्रकार प्रोटीन के टैंक को भी सुबह उठ के फुल करना जरूरी है. It boosts your metabolic rate.
बाई 15 to 30%। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, ये इसको इंक्रीज करता है बाय अराउंड 15 to 30%। तो अगर आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होगा तो आप देखेंगे आपका डायबिटिक लेवल, आपके अदर जो हेल्थ पैरामीटर है वो भी इंप्रूव होंगे। ये सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है। दिन भर जो हम काम करते हैं, अगर आपने मॉर्निंग में प्रोटीन नहीं लिया है, इमेजिन करिए आप दिन भर कितनी फटीग फील करेंगे। इट इज लाइक यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, बट उसके टायर में हवा ही आधे से भी कम है। ना वो चलेगा तो सही, बट वो ढंग से नहीं चलेगा। एंड हायर थर्मिक इफेक्ट को ये, बेसिकली जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है ये उसको इंप्रूव करता है, उसको ऊपर लेके जाता है। थर्मिक इफेक्ट फूड क्या होता है हम थोड़ा सा आगे इसको समझेंगे, बट डिटेल में इसके बारे में अनदर सेशन होएगा जहां आप समझेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नो वाई प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, एज आई जस्ट सेड दैट मॉर्निंग में आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो क्योंकि रात को प्रोटीन बैलेंस नेगेटिव है, ये सारे रीजन से प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में। आपका जो वेयर एंड टेयर इन द बॉडी होता है, आपका जो मसल, जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, दिन भर में ज़्यादा होती है। सो ये एक स्टडी की गई थी, पीपल हु हैड मोर प्रोटीन इन द ब्रेकफास्ट कंपेयर टू डिनर वर्सेस पीपल हैड मोर इन द डिनर कंपेयर टू द ब्रेकफास्ट। नाउ मोस्ट ऑफ अस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन टूडेज फास्ट पेस लाइफ में हम ये फैमिलीज को देखते हैं, ज़्यादा करके हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही स्किप्ड ब्रेकफास्ट होता है, बहुत जल्दी वाला होता है, बिकॉज हमें ऑफिस जाने की जल्दी होती है, हमें काम पे जाने की जल्दी होती है। नॉर्मली हमने देखा है कि हम डिनर को फैमिली टाइम की तरह सेलिब्रेट करते हैं, खाने को बहुत ज़्यादा फोकस डिनर को करते हैं। बट हेल्थ के एंगल से अगर आप देखेंगे तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज अपसाइड डाउन। Now, people who had more protein in their breakfast compared to the ones who had in the dinner, there was a big difference in their muscle volume. They had a high muscle volume, they had a high grip strength, and what it means, it helps in maintaining optimal मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक हेल्थ उनकी बेटर थी। इसके वजह से उनकी डायबिटिक हेल्थ बेटर थी, इसके वजह से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अदर फैक्टर्स इंप्रूव थे। They have a better fitness and functionality level, and overall if you see, the quality of life is much better in them. बेटर प्रोटीन वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सटाइटी को इंप्रूव करता है। नाउ सटाइटी का मतलब क्या होता है? सटाइटी का मतलब होता है आप ज़्यादा देर तक पेट आपका भरा भरा फील करोगे, आपको ऐसा, आपको बार बार भूख नहीं लगेगा। और जो डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस होता है ना, थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जो भी फूड को जब हम खाते हैं, सो ये अंदर जाके बर्न होता है और अंदर जाके उसमें से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट होती है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। और आपके वेट मैनेजमेंट में द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू ईट ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस इन व्हाट यू आर ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप आलू पराठा खा रहे हैं, और आप आलू पराठे कोई, आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, जो नॉर्मल आटा है आप उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड कर दीजिए। आप सेम चीज़ के दो अलग अलग रेसिपीज को अगर आप इवेल्युएट करके देखोगे, तो द वन विद अ मोर प्रोटीन रिच डाइट, उसकी जो थर्मोजेनेसिस है वो इंप्रूव हो जाएगी, जिसके वजह से बॉडी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको बर्न करने के लिए, और आप देखेंगे आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा, राइट। सो प्रोटीन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट मैनेजमेंट, क्रेविंग्स। जो कुछ लोग होते हैं कि उनको खाने के बाद डेफिनेटली स्वीट की अर्ज होती है, कई बार स्वीट खाने के बाद सॉल्ट की अर्ज होती है, ये जो अर्ज है ये उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। सोए प्रोटीन का जो वेट मैनेजमेंट में जो मैकेनिज्म है, ये कैसे हेल्प करता है? ये सटाइटी है, ये एपिटाइट रेगुलेशन में मदद करता है, ये थर्मोजेनेसिस और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ लीन बॉडी मास में हेल्प करता है, आपकी कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करने में मदद करता है। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर कोलेस्ट्रॉल। ग्लाइसेमिक कंट्रोल में ये हेल्प करता है, एंड एनहांस फैट ऑक्सीडेशन में आपकी मदद करता है। सो इट हैज गॉट अ वेरी वेरी वाइटल रोल टू प्ले। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बिकॉज इंप्रूव्ड एनर्जी लेवल, स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल, एंड डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग लेवल में आपकी मदद करता है। बी इट मूड, अलर्टनेस, प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये सब में मदद करता है।
Recently, there was this article in the newspaper some 10 days ago that one of the leading company which has the biggest market share of insulin in India, they are winding up their insulin business from India. They are launching programs like this so that because now they also believe that अगर किसी को long term health benefit देना है तो सिर्फ insulin is not enough. You need to be on a program like this which covers holistic health about the whole thing, you know. सो इमेजिन करें अगर बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रही है एंड दे आर टेकिंग बिग कपल ऑफ 100 करोड़ बिजनेस के ब्रांड्स को अगर वो वाइंड अप कर रहे हैं इंडिया में, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. Protein should be consumed across the day, especially during the breakfast, right? So, what Farooq always says that almost 50% of a protein intake आपको morning में ले लेना चाहिए, another 30% by afternoon, and then another 20% by evening. You should consume your protein requirement for the day. And आप देखेंगे कि आपके overall performance में, आपके health में, how strongly it is going to have an impact on your overall health. प्रोटीन न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोटीन टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होना चाहिए, प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डे कैसा होना चाहिए, एंड प्रोटीन का जो डेली इंटेक है ये कैसा होना चाहिए. तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में. नाउ ये दो चीज़ें जो आप देख रहे हैं, वन इज़ अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, द अदर इज एनिमल बेस्ड प्रोटीन. नाउ डिपेंड ऑन योर फैमिली पैटर्न, आप क्या खाते हैं वो बहुत मायने रखती है. बट ऐसा देखा गया है जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये आपकी अल्कलाइन वैल्यू को मेंटेन रखता है, जबकि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है ये आपकी एसिडिक वैल्यू को इंक्रीज करता है. नाउ अ बॉडी अगर उसका एसिडिक वैल्यू इंक्रीज होगा, सो व्हाट यू विल फाइंड इज मोर यू आर प्रोन टू मोर डिजीज इफ योर बॉडी इज मोर एसिडिक इन नेचर. और अगर आपका बॉडी एल्कलाइन लेवल पे रहेगा तो आप देखेंगे अगर आप कोई बीमारी से भी जूझ रहे हैं आप उसको क्लियर कर लेते हैं, मतलब ठीक हो जाते हो. सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव. बट अनफॉर्चुनेटली प्लांट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते हैं. ऑप्शन है तो सारे अमाइनो एसिड्स नहीं उसमें मिक्स कर पाते हैं. सेकेंड, बॉडी प्लांट से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने में इट्स अ मोर टीडियस जॉब फॉर द ह्यूमन बॉडी टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन. सो इट इज so on one side it is very important that our protein should be plant based. Second side बहुत ज़्यादा choice नहीं है, इसलिए it is very important to go for a protein supplementation which is plant based in nature. बिकॉज एनिमल सोर्स प्रोटीन आपकी गट हेल्थ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. ये एक साइड प्रोटीन तो देता है लेकिन पैरेलली अगर आप देखेंगे तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इंक्रीज कर रहा है. सो हेंस ये बहुत ये कैच 22 सिचुएशन हो जाती है हमारे में. सो आइए देखते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन कैसे आप ले सकते हो और उसका और ज़्यादा क्या बेनिफिट है. नाउ why all this study, right? Why this program, why all this stuff? Now what they realize, what there is something called blue zone in the world. Now these are the 5 places. अगर आप देखेंगे, वन इन यूनाइटेड स्टेट, वन इन कोस्टा रिका, अनदर वन इन इटली, ग्रीस, जापान. इसको वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किया गया है कि ये 5 वो जोन है जिसको ब्लू जोन हम बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? ब्लू जोन आर द रीजन्स वेयर अ हायर देन अ यूजुअल नंबर ऑफ पीपल लिव मच लॉन्गर देन द एवरेज. देयर आर 5 ब्लू जोन एरियाज इन द वर्ल्ड. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वो एरिया है जहाँ पे नॉट ओनली दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, they have a much better health span also comparatively to the other people. So overall अगर आप ये वो places identify किए गए हैं जहाँ पे लोगों की quality of life and the quality of health is much better compared to any other part of the world. So there was a big research that happened कि ऐसा ये लोग क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, क्या हम उसको प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं. इकिगाई जो ये फेमस बुक है ये भी इसी फिलोसफी पे लिखी गई है. सो देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड अराउंड दिस. एंड कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हो ये भी उसी का कहीं ना कहीं एक एक्सट्रैक्ट आप कह सकते हो या उसी से निकाला गया चीज़ है. सो ब्लू जोन के लोग ऐसा क्या करते हैं, एंड व्हाट दे फिगर आउट वाज दिस इज व्हाट दे डू. उनका फूड पैटर्न कैसा है, डेली, वीकली, मंथली. 95 to 100% of the food that they eat is plant based. They eat whole grain food like single ingredient, raw, cooked or fermented, and not they don't eat processed food, right? Daily doses of beans like half to 1 cup per day. So ये उनका daily regimen है. Drink mostly water about 7 glass per day. Coffee, tea, and wine in moderation or almost nil. They snack on nuts about 1 to 1/2 handful of a day. So what they, आज की तारीख में हम लोग ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. So I think because of the internet, social media, we know what not to eat, but very few people understand that what to eat.
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। लाइक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए, बट जब आप इसकी डिटेल स्टडी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, इट इज नॉट डूइंग हार्म टू देम, इनफैक्ट इट इज गुड फॉर देम, फॉर द पीपल, इफ अ डायबिटिक पेशेंट इज हैविंग वाटरमेलन। नाउ आई एम जस्ट लिविंग यू विद दिस अ फूड फॉर थॉट, कि सोच के देखिए कि अगर जब हमें पता होता है कि हमारी बॉडी कैसे बिहेव करती है, व्हाट इज द राइट थिंग टू ईट, you can make the right choices, and hence uh, you can increase your health span in comparison to your lifespan. सो ये उनका वीकली है, देन मंथली है कि वो क्या चीज़ खाते हैं क्या चीज़ नहीं खाते हैं। सो प्लांट बेस्ड इज मोस्ट एसेंशियल, अगर आप इसमें देखेंगे, इज टू पिक अप लाइक प्लांट बेस्ड। नाउ सोए प्रोटीन का क्या बेनिफिट है? नाउ एनाबॉलिक, एनाबॉलिक का मतलब होता है जब आपका मसल सिंथेसाइज करता है, सो वो अमाइनो एसिड उसको चाहिए होता है, और वो अमाइनो एसिड कहाँ से लेता है? वो अमाइनो एसिड्स आपके ब्लड स्ट्रीम से लेता है। सो अगर आपके ब्लड में राइट सेट ऑफ अमाइनो एसिड्स रहेगा, आप देखेंगे आपके मसल का जो सिंथेसिस है, जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, वो सारे में बहुत पॉजिटिवली वो करता है। बियॉन्ड मसल, इसका जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड एनाबॉलिक, इसका मतलब क्या होता है? ये आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, वेट मैनेजमेंट में डेफिनेटली मदद करता है, ना आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई वी शुड हैव सोई प्रोटीन, राइट। ये कुछ फर्दर उसका है कि आपके हार्ट हेल्थ में कैसे मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड, इसको कम करने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड इज अनदर वेरी वेरी बिग कंसर्न एरिया फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन दर हेल्थ एरिया। हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ना जानते हैं ब्लड रिपोर्ट में, बट हम ये नहीं जानते कि एच डी एल, विच इज़ योर गुड कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, और ट्राइग्लिसराइड, इसकी रेशियो क्या क्या कर सकता है, right? Very few people understand the role of triglyceride and how it can negatively impact your health. मेटाबॉलिक हेल्थ में कैसे आपकी मदद करता है? इट प्रोवाइड्स फुलनेस, एनर्जी एक्सपेंडिचर, फैट बर्निंग, हार्मोनल बैलेंस, बोन डेंसिटी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत बार हम ये सुनते हैं कि लोग मल्टीपल, दे आर प्रोन टूवर्ड्स मल्टीपल बोन फ्रैक्चर, एंड जो बोन डेंसिटी है ये कम हो जाती है एज यू एज, ये उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वेट मैनेजमेंट में हाउ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सैटिस्फैक्टी। सैटिस्फैक्टी का मतलब है आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, आपको ऐसा फील होगा कि आपको खाना खाने की जरूरत नहीं, यू फील फुल, राइट। उसके वजह से आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी, आपके बार बार जो खाना खाने की हैबिट है वो कम हो जाएगी, और आप देखेंगे आपके वेट मैनेजमेंट में इट ब्रिंग्स अ वेरी वेरी गुड रोल। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग योर ब्लड शुगर लेवल, ये उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर किसी को ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, आप उसको एक प्रोटीन रिच डाइट पे लेके आइए, आप देखेंगे उसका अल्कोहल, जो अल्कोहल कंज्यूम करता है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा, जो निकोटिन क्रेविंग है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा, राइट। आपके लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करता है, आपके फैट बर्निंग, हार्मोनल रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड लीन बॉडी मास में भी आपकी मदद करता है। सो व्हाट आर सम मिथ्स? जब हम सोए के बारे में बात करते हैं तो सम मिथ भी है। आइए समझते हैं इसके फैक्ट्स क्या है। सोए इफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, द फैक्ट इज इट इज रॉन्ग। सोए causes early puberty, it is also wrong. Soy is bad for your thyroid, in fact thyroid patients के लिए तो all the more important है, because ये आपके हार्मोन रेगुलेशन में मदद करता है। Soy allergies are common, like any other food. Soy can cause allergic reaction in sensitive individuals, like 1 out of 1 million. As they say that haldi is the most pure, turmeric is the most pure thing, but some people can be allergic even to turmeric. So similarly, for some they can be allergic to this, but I would suggest that अगर वो अपने हेल्थ बडी के साथ बैठेंगे, वो एलर्जी रिड्यूस हो जाएगी, जिसके वजह से वो ये चीज नहीं इम्पैक्ट करेगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड ऑल दिस स्टफ। Now, as Farooq was saying, you have a choice. You have a choice of eating hard or eating smart. And as Farooq was mentioning कि अगर आप घर में बनाओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। Now, ये एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको प्रोटीन चाहिए, which is like around 60 gram of protein you need. Now, what are your options? Like, for example, you need to take 11, you need to eat 11 eggs every day. Or probably you'll have to eat 50 bananas every day. और पोटैटो, समथिंग अराउंड 25 पोटैटो एवरी डे। सो वो आपको कैलोरी भी देगा और फैट भी देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप 11 एग्स खाते हैं तो आप देखिए 60 ग्राम्स ऑफ फैट दे रहा है। सो एक साइड वो प्रोटीन तो देगा, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी योर कोलेस्ट्रॉल लेवल वुड ऑल्सो गो अप। नाउ
or probably you need to drink 8 glasses of milk every day or 8 cups of curd. Now, this is one of the combination. The second combination is Nutrilite all plant protein, which has got a PDCA score of 1. One scoop gives you 8 gram of protein. The other brand that I was talking about, 100 gram is 7 gram protein, and that too not with 100, not with PDCA score of 1. And even that brand never had all amino acids in it. What you're seeing over here is one scoop, which is almost around 10 gram ka scoop, gives you 8 gram of protein. Fat is only 0.5 gram in it. So कैलोरी भी कम है. So देखिए how it is balancing. और ये एब्सोल्यूट राइट है, विच इज अ ट्राई ब्लेंड ऑफ सोय, व्हीट एंड येलो पी. ये तीनों का बैलेंस है. सो यू हैव टू मेक लाइक, यू नीड टू लर्न. आपको ये समझना होगा दैट ये क्या है, एंड गेट इन टच विद द पर्सन दैट वाज इनवाइटेड. दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस इज द बेस्ट. राइट. प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, क्यों इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एनिमल सोर्स. दे आर हाई इन फाइबर. So hence it also helps you to improve your gut health. They are packed with the right set of antioxidant and other nutrients. No cholesterol in it, low in saturated fat, no animal hormones, sustainable, environmental friendly. So this is why it is important to make a choice of plant-based protein, right? I hope you learned something new today. I hope you made some new, at least आपको आंसर नहीं मिला तो आई एम श्योर आपके दिमाग में कुछ नए सवाल आ गए. और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो कुछ साल पहले हम ये देखते थे कि लोग व्हाट इज द हेल्थ गोल. यू नो पीपल टेक अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ गोल्स. कोई वेट लॉस की तरफ जा रहा है, कोई डायबिटीज से हो रहा है. द बेस्ट थिंग दैट आई लर्न इन दिस प्रोग्राम वॉज you can decide a very simple health goal for yourself, that you know हमें बीमारी नहीं पड़ना है, हमें मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है. And what I love in this program is the philosophy of Farokh through this program is हर घर तंदुरुस्त, हर घर medicine free. So start your everyday with a gratitude and optimism. Have your nutrition in time. I mean, this is a subject to be studied. पहली बार मेरा भी रिएक्शन यही था कि अगर हमें भोजन से ये सारी चीज़ें मिल रही है तो क्या ज़रूरत क्या है ये सब चीज़ों को पंगा करने का. इनफैक्ट माई डॉक्टर वंस जब मैं उससे ये चीज़ डिस्कस कर रहा था तो उसका बड़ा सिंपल रिएक्शन था, यू नो ये अमीरों के चोचले हैं. I mean, they want to make the simple thing complicated. Today, the same doctor, when I meet or see it, he himself is going through a lot of medical challenges. So, you know, medicine cannot be substitute of a nutrition. And nutrition needs to come from your food. But अगर food में वो चीज़ नहीं है, because of the agricultural practices, because of the gene modified seeds, because of the water quality, the soil quality, obviously the nutrition in the food is not the same, and hence it is very important to supplement. And how do you supplement? How do you select the right supplement is what you are going to learn over here. Intentions. I hope you've created some right intention and you can visualize and set some clear intention for yourself, because it is okay to be ignorant sometime. You know, आज के पहले अगर आपको प्रोटीन के बारे में नहीं पता था, it's okay that you were ignorant. आपको नहीं पता है. लेकिन आज अगर आप जानने के बाद भी अगर आप इसके ऊपर नहीं आप सोचोगे, so then it is not a right thing. I hope you learn something new and you are exercising every day daily. So this is from our side. Do connect us next Monday, because हर दिन आप ऐसे ही देखोगे that through these sessions we are covering some very very important, and our whole idea about this whole program is we can help you to create the right information so that you can pick the right health goal for you, and you can be joining us on this program Har Ghar Healthy and Har Ghar Medicine Free. Thank you very much. Over to Ruchita. Thank you, Raj, for explaining that so wonderfully. And guys, I hope next time you find someone who's saying एक दाल की कटोरी खाया हमारा protein intake ठीक है, you'll know that's not actually true, and you'll know what needs to be done. With that, we're open to any questions. If somebody would like to ask, they can raise their hands. Yes, not. Thank you. You've been a great audience. See you next Monday with a new session and a new topic. Till then, good night. Stay safe.